Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, leaving no child behind. Today we are going to talk about some more sources of energy. मतलब ऐसे innovative sources जहाँ से हमें बहुत सारी energy मिल सकती है. But those sources literally need some innovation more and more discoveries, more advancement we can say, right? तो ये जो हैं इन्हें हम बोलेंगे नॉन कन्वेंशनल. वाई सो नॉन कन्वेंशनल? बिकॉज ये जो सोर्सेज हैं ये अभी नए नए सोर्सेज हैं, पूरे तरीके से अपनाए नहीं गए हैं एंड इनके अंदर जो इनोवेशन है वो और भी ज़्यादा चाहिए ताकि हम इसे और भी ज़्यादा एफिशिएंट बना सकें, राइट? सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द ओशियन थर्मल एनर्जी. आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज दैट, ओशियन वेव एनर्जी, एंड वील बी टॉकिंग अबाउट द बायो एनर्जी. ठीक है, तो इट वुड बी सो कूल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट? यू ऑल नो कि ये जो हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ रहे हैं ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के साथ साथ आपको दूसरे ओलंपियाड्स एंड दी वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सभी में हेल्प करेगा, राइट? तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है दैट यू डू स्टडी ऑल दीज मेथड्स, राइट? ये जितने भी सोर्सेज हैं उन सबको एंड द मेथड हाउ वी आर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम दैट, किस बेसिस पे एक्चुअली हम लोग एनर्जी सोच पा रहे हैं कि वहाँ से हमें एनर्जी मिल सकती है, राइट? एंड if you think of something innovative idea in these sources of energy, make sure you share them, right? That would be so cool, right? Now if you want DPP and study material, you can access them through our Telegram channel. You can write the TDP 010 in the search box of the Telegram app, all right? And when you do so, ड्रॉप डाउन लिस्ट में 10th क्लास का चैनल अपेयर हो जाएगा. यू कैन ज्वाइन दैट चैनल एंड एक्सेस ऑल द DPPs and study material along with the notifications of the video classes. All right, now see, this is the team which is going to help you a lot, as we as a team are putting so much of our efforts into this videos, and we are trying our best कि we do provide you the content, the quality content basically, and so that you can crack the examination, right? You have set your goals for, right? And definitely this will going to increase your knowledge base. That would be so cool, and this will also increase your capability to store information, to get up to the basic environment जो आपका है उसके बारे में जो information आपको पता होनी चाहिए, because this sources of energy topic is literally very much in through the environment. आप अपने आसपास के environment में इसे देख सकते हैं. Even you can make sure you can make some small projects based on these, and you can try out for yourself कि क्या सचमुच में energy मिलती है या नहीं, या फिर what can we think more about these sources of energies. So that is what you need to do. You need to study from these video lectures. You must know about the basic minimum thing, right? And then only you are going to get up to the good knowledge, the advanced knowledge, and then you can do up some innovations on your own, right? So let's get started. All right, and I'm telling you that these video lectures are free for everybody. So everybody can see that. Make sure you do watch these video lectures and you share them with your friends. Also remember to go on our website, that is www.talkingtextbooks.in. When you go on our website, you are going to get the two type of packages over there, the full package and the test series. You need to make sure that you do know about these packages. These packages are going to help you a lot, as they will maintain the consistency, and they will be going to get the minimum things which are required to every student who is thinking of cracking the examinations, and that is very 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 important to you. Why so? Because this will be the consistent learning, this will be a step by step learning, so you will not be overwhelming while studying, right? आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आप एक महीने पहले बिल्कुल रात दिन पढ़ रहे हैं and before that you are doing nothing. ऐसा नहीं होगा. You are going to do the consistent study, the step by step, थोड़ा बहुत रोज हम लोग study करेंगे, तो that would be good, right? And how these are going to benefit you? Let's see that. Now you can see here comprehensive study material, recorded and live classes. To understand that material, you are going to get the recorded and live classes, and then you are going to get the homework submission feature. That means you are going to do the homework. ऐसा नहीं है homework से छुटकारा मिल जाएगा, right? You will be going to do the homework and then you will be submitting to us.
Then comes the testing part, the bi-weekly quizzes and the periodic test papers. Bi-weekly quizzes जो होते हैं वो होते हैं 1 week में twice, ठीक है. So what you need to do is you need to watch the lectures and then you attempt the quiz. Then you watch the lecture, attempt the quiz, and that will be good. And also you need to attempt the periodic test papers. Periodic test papers इस basis पे बनाए गए हैं कि जिस examination की आप तैयारी कर रहे हो, जिसको आप क्रैक करना चाहते हो, वो एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा है, कितनी क्वेश्चंस आते हैं, आपकी क्या एक्यूरेसी होनी चाहिए, एंड व्हाट शुड बी योर स्पीड, ये सब बातें आपको क्लियर हो जाएंगी. सो दीज आर द मिनिमम थिंग्स you need to crack the examination, and that comes in the category of the full package, right? And next comes the testing part, that is the test series. So you can also join the test series. You can get up to all the minimum things required there, like you will be getting the bi-weekly quizzes, periodic test papers, and recorded and live classes, right? So that will be cool. And if you want to join it, right, if you want to join it, then you can use my code CY Live to get a 30% discount, because everyone loves discount, right? So CY Live is the discount coupon for you, and you can use that so that you can get up to the 30% discount. Also, if you want to know more about these packages, then you can call us on the number 919549041111. All right, so let's get started. So promise yourself you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes, and you will be revising on a daily basis. All right, and that would be all. Right, let's get started. तो basically आज हम लोग पढ़ रहे हैं ocean thermal. You are going to get the ocean wave, you are going to get the geothermal, and we are going to get the bioenergy, right? अब ये जो 4 types of very innovative energies हैं जहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा amount में energy मिल सकती है if हम थोड़ी सी efficiency इन sources की बढ़ा दें. और efficiency तो तभी बढ़ेगी जब हमें इनके बारे में पूरी जानकारी होगी, and we make up to some innovation, some discoveries over there, some changing of the material over there, या फिर कैसे भी कोई भी आइडिया लगाकर we can make sure that इसकी efficiency हम increase कर सकें, right? So let's get started. Let's study first about all of them, and then we will be thinking about those innovations, all right? So basically let's talk about the ocean thermal energy. ठीक है, इसमें आपको 2 words मिल रहे हैं, ocean thermal. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर आपको 2 words मिल रहे हैं. That is the ocean, and you are going to get thermal. Thermal means heat, and ocean. Ocean तो सबको पता है, right? तो देखो, ocean thermal energy means the energy coming from the heating of the ocean. मतलब ocean गर्म हो जाते हैं, ठीक है. जो पानी वाटर बॉडी ही तो है, हालांकि बहुत लार्ज वाटर बॉडी है, बट स्टिल वाटर बॉडी तो है, राइट? तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही सन की लाइट जब कभी भी सरफेस पे आती है, ओशियन की सरफेस पे फॉल करेगी, तो क्या होगा, ऊपर की सरफेस तो वेरी वेरी हॉट हो जाएगी. क्यों? क्योंकि उसे तो सन की हीट एनर्जी मिल रही है. बट नीचे की जो लेयर्स है, ओशियन के नीचे की लेयर्स है, ओशियन तो बहुत डीप भी होता है, राइट? तो जैसे जैसे हम डीप में जाते जाएंगे, पानी का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता जाएगा, राइट? तो ऊपर तो टेम्परेचर ज़्यादा, नीचे टेम्परेचर कम. दिस टेम्परेचर डिफरेंस इज गोइंग टू गेट अस द एनर्जी वी वांट. Literally, this is known as the ocean thermal energy. Look up to this. The energy due to difference in the temperatures of the water at the surface of the ocean and at deeper levels is called ocean thermal energy. मतलब वो एनर्जी जहाँ देखो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ये एनर्जी को कहाँ से, इस टेम्परेचर डिफरेंस से, राइट? सो देखो यहाँ पे जब कभी भी लेट इट बी, दिस इज द सरफेस ऑफ ओशियन एंड दिस इज द बेड ऑफ द ओशियन, ठीक है? तो दिस इज द बेड ऑफ द ओशियन, ठीक है, एंड दिस इज द सरफेस ऑफ ओशियन. और इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है. लेट मी टेल यू, बेहद ज़्यादा डिफरेंस है. तो लुक अप टू दिस. सन की जो रेज हैं, ठीक है, सन की जो रेज हैं वो इस तरीके से सरफेस पे जाएंगी, राइट? जब ये सन की जो रेज है वो सरफेसेस पे जाएंगी, तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं उन्हें मिल जाएगी ज़्यादा एनर्जी, राइट? हालांकि थोड़ी सी एनर्जी नीचे भी जाएगी, बट वो ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएगी, राइट?
वो ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएगी, क्योंकि नीचे जाते 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 सन की इंटेंसिटी तो फिनिश हो जाएगी। रिमेंबर व्हेन वी टॉक अबाउट द रिफ्रैक्शन पार्ट, कि जब वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाती है कोई भी लाइट, डेफिनेटली कोई भी लाइट अगर जाएगी तो क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, राइट। तो जैसे जैसे लेयर बाय लेयर पानी नीचे जो सनलाइट है वो पानी के अंदर जाते जाएगा डीपर लेवल्स में, वहाँ पे जाते जाते उसकी इंटेंसिटी कम होते जाएगी। दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट वुड बी वेरी 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 लेस, राइट। एंड दैट इज द रीजन कि ऊपर वाली सरफेस तो काफ़ी ज़्यादा हीट अप हो जाएगी और नीचे वाली सरफेस बहुत ही कम हीट अप होगी। दैट मीन्स यू कैन से वेरी मच कोल्ड वाटर वुड बी देयर, ठीक है, एट द सी बेड एंड यू कैन गेट अप टू द सर्फेस ऑफ द ओशन, ठीक है। लेकिन हमको ये जो डिफरेंस चाहिए होता है ना, वो सिर्फ 2 किलोमीटर अप टू चाहिए होता है, ठीक है। मीन्स वी वॉन्ट अ पर्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर्स अप टू अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। लेट मी टेल यू हाउ। लेट्स गेट अप टू द सेकेंड slide of this. All right, how is ocean thermal energy harnessed, how we get that energy basically, all right। so इसके लिए हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, उन डिवाइसेस को हम लोग यूज करेंगे जो कि इस एनर्जी को हार्नेस करने में हमारी हेल्प करते हैं। विल बी लुक अप टू ऑल द फैक्ट्स ओवर हियर, ठीक है। तो देखिए, द डिवाइसेस यूज टू हार्नेस द ओशियन थर्मल एनर्जी आर नोन एज ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन OTEC पावर प्लांट्स, जो कि कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। ऐसे रियलिटी में नहीं होते, तो सिर्फ छोटा सा फिगर है, ऑलराइट। तो देखिए, ये OTEC पावर प्लांट्स होते हैं जो कि हमें ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन ये काम करते हैं, ऑलराइट। तो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या समझना है कि वो जो हीट एनर्जी है वहाँ से हमें एनर्जी निकालनी है, बट हाउ दैट कैन बी पॉसिबल, उस हीट एनर्जी का हम लोग कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, और वो हीट एनर्जी कितनी होनी चाहिए मिनिमम कि हम लोग एनर्जी उससे ले सकें, ठीक है। सो देखिए, उसके लिए नेक्स्ट, to operate an OTEC plant efficiently, the temperature of ocean water at the surface should be higher by 20 degrees Celsius or more than the water at certain depth, about 1000 meter। तो मतलब जो सरफेस है जहाँ से आप ये एनर्जी लेना चाहते हो, उस सरफेस का और 1000 मीटर नीचे तक की सरफेस पे मिनिमम डिफरेंस शुड बी 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मतलब टॉप सरफेस पे यानी सरफेस पे जितना टेम्परेचर है और 1000 मीटर नीचे जितना टेम्परेचर है, इनका डिफरेंस शुड बी 20 डिग्री सेल्सियस, तभी जाके वी कैन हार्नेस दैट एनर्जी। इफ दैट इज नॉट पॉसिबल, अगर ऐसा नहीं होता है, देन वी आर नॉट कैपेबल ऑफ हार्नेसिंग द एनर्जी विच इज देयर ओनली, ठीक है। चलिए, वार्म सरफेस वाटर इज यूज टू बॉयल लिक्विड सच एज अमोनिया और अ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सो बेसिकली यहाँ से हम लोग मेन अपनी एनर्जी को हार्नेस करने वाले हैं। कैसे? देखिए, मेन हमारा काम क्या है, हीट होने वाला जो टेम्परेचर डिफरेंस है इसे लेकर आना, राइट। टेम्परेचर डिफरेंस के लिए हम लोगों ने सबसे पहले देखा ऊपर वाला टेम्परेचर जो कि ज़्यादा है, राइट, बेस से 20 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, वहाँ पर हम एक ऐसा लिक्विड सब्सटेंस लेने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। सो एंड दैट इज यूज्ड एज अमोनिया, दैट लिक्विड, ठीक है। वो अमोनिया हो सकता है या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC हो सकता है, बिकॉज these are the liquids which can warm up very 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 easily and they can change into the vapors very very easily, ठीक है। दैट इज वाई हम इन्हें यूज करते हैं। अब ऊपर वाली जो सरफेस है उसका टेम्परेचर जब इस लिक्विड को मिलेगा, अमोनिया को मिलेगा, वो क्या करेगा, अमोनिया क्या करेगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे हीट एनर्जी मिल जाएगी, राइट। वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो फिर क्या होना चाहिए, जैसे ही वेपर्स में कन्वर्ट होगा फिर टर्बाइंस मूव होनी चाहिए, बिकॉज वेपर्स हैव द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, द मोर काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए दिस इज द कोल्ड सी वाटर जो कि बिल्कुल नीचे है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लेवल तक यू आर गोइंग टू गेट दी हॉट सी वाटर, ठीक है। नॉट दैट मच हॉट बट ग्रेटर 20 डिग्री सेल्सियस, तो यू कैन से वार्म वाटर। सो आपको यहाँ पे मिल जाएगा वार्म वाटर, यहाँ पे मिल जाएगा कोल्ड वाटर। सो यू कैन सी अप टू हियर, यहाँ पे है लिक्विड अमोनिया, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे इलाका कैसा है, वार्म वाटर का है, तो अमोनिया क्या करेगा, एनर्जी ले लेगा,
एंड जैसे ही एनर्जी ले लेगा वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वेपर्स पानी के थ्रू जाएंगी सीधे ऊपर, बिकॉज दे हैव काइनेटिक एनर्जी एंड वेपर्स गोज अप स्ट्रेट, राइट। तो वो सीधे ऊपर जाएंगी। ऊपर जाने पे दे हैव वेरी मच, यू कैन से वेरी मच हाई एनर्जी, राइट। सो दे विल मूव अप दिस टर्बाइन हियर, यहाँ पे इस टर्बाइन को मूव करेंगे बिकॉज दे हैव वेरी मच काइनेटिक एनर्जी। टर्बाइन मूव होते ही जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म हो जाएगी, राइट। एंड जितना अब, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो गया, टर्बाइन घूमने में एनर्जी खत्म हो गई, तो ये जो वेपर्स हैं दे विल कंडेंस, दे विल हैव अ लेस एनर्जी एंड दे विल कम डाउन, ठीक है। जैसे ही वो कम डाउन होती हैं अगेन यहाँ पे उनको मिल जाएगा, यू कैन से द कोल्ड सी वाटर, ठीक है, अगेन ठंडा मिल जाएगा। सो दे विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड देन दे विल गो अप टू द वार्म सरफेस यूजिंग दैट वार्म temperature. So basically this cycle goes on and we are just going to change the state of ammonia. जैसे ही लिक्विड अमोनिया था, लिक्विड अमोनिया को हम वार्म सी वाटर तक लेकर जाएंगे तो वहाँ पे वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर्स में कन्वर्ट होते ही वो टर्बाइंस को मूव करेगा बिकॉज ऑफ द हाई काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही उसकी एनर्जी कम हो जाती है एंड उसको हम कम टेम्परेचर अगर दे देते हैं, राइट, कोल्ड सी वाटर का टेम्परेचर उसे दे देते हैं, तो वो क्या करेगा, वो वेपर्स किस में कंडेंस हो जाएंगी, वापस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगी एंड वी कैन अगेन यूज दैट लिक्विड अमोनिया इन changing their state in the vapor form and this whole cycle goes on. But this is the most important thing कि जो temperature difference है that should be 20 degree Celsius, minimum 20 degree Celsius and that is the main thing. अगर ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होता है तब तो और भी बढ़िया, बहुत अच्छे से हमें एनर्जी मिल सकती है, बट अगर इससे लेस होता है तो अमोनिया इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। चलिए, द वेपर ऑफ सच लिक्विड इज यूज टू रन द टर्बाइन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो अमोनिया था या फिर CFC था, उसका जो वेपर्स हैं वो टर्बाइन को रोटेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द डेप्थ इज यूज टू कन्वर्ट द वेपर इनटू लिक्विड। अब डेप्थ से जो कोल्ड वाटर, मतलब नीचे की तरफ तो ठंडा पानी था, वो किस में काम आ रहा है, वेपर्स को लिक्विड में चेंज करने के लिए, राइट। एंड देन द वार्म सी वाटर इज यूजिंग इन चेंजिंग द स्टेट फ्रॉम लिक्विड इनटू वेपर्स, ठीक है। एंड दैट्स हाउ दिस होल प्रोसेस कंटिन्यूड एंड देन वी आर गोइंग टू गेट अप द एनर्जी, ठीक है। फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। Alright, now let's look up to the advantages. क्या क्या ऐसे फायदे हैं हमें इस पावर प्लांट को यूज करने के. Let's look up to that. So ओशियन थर्मल एनर्जी के कुछ एडवांटेजेस. तो देखिए यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए इवेपोरेटर जो कि क्या कर रहा है, लिक्विड से उसको गैसियस में चेंज कर रहा है, ठीक है, यूजिंग दी वार्म सी वाटर, ठीक है. अब वाटर वेपर जाती हैं टर्बाइन तक, रोटेट करती हैं. अब उनका एनर्जी जब लेस हो जाता है, दे कम्स इन दी कंडेंसर. यहाँ से कोल्ड वाटर का टेम्परेचर लेके कंडेंस किया जाता है एंड वी आर गोइंग टू गेट दी लिक्विड अमोनिया अगेन, राइट. एंड दिस प्रोसेस, होल प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ठीक है. तो देखिए एडवांटेजेस हम क्या यूज कर सकते हैं. देखिए इट कैन बी यूज कंटिन्यूसली 24 आवर्स अ डे थ्रू आउट द ईयर, दैट इज अ गुड थिंग.
whole year, for the whole year you can use this and you can use that 24 hours a day. मतलब हमारा जो power plant है OTEC power plant जो है, that power plant can work up to the 24 hours, like it can work like every single minute, right? That would be cool. It is a renewable source of energy and its use does not cause any pollution. No pollution, and it is renewable. You are going to get every single time, you are going to get the sun, you are going to get the heat energy, and there would be the temperature difference. So that would be all, right? It would be definitely going to be available at any moment of time. राइट तो बेसिकली ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई, राइट? तो इन्हीं की वजह से दैट पावर प्लांट, दीज पावर प्लांट्स आर वेरी मच गुड, important. Also they are very much, you can say, a good way to get that energy, right? तो अब ये source of energy अब आपको पता चला. Now you can choose this source of energy is good or not by using those you can say specifications I told you about the good source of energy. All right, next comes the ocean wave energy. And the ocean wave energy is the energy associated with ocean waves is known as the ocean wave energy. Basically ओशन में भी हमेशा वेव चलते रहती हैं, राइट? कैसे ऐसा होता रहता है? बिकॉज वाटर की जो सरफेस होती है ये स्टिल नहीं रहती. सेकेंड थिंग कि इसके ऊपर प्रेजेंट जो एयर है अगर वो मूव करेगी तो बिकॉज ऑफ दैट जो सरफेस ऑफ द वाटर है, ओशन है, वो क्या होता रहेगा? हमेशा मूव करता रहेगा. मीन्स देयर वुड बी वेव्स एवरी सिंगल टाइम ओवर देयर, राइट? तो ओशन में जो वेव्स चलते रहती हैं उनको हम किस तरीके से, उनकी एनर्जी को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, और वी कैन हार्नेस दैट एनर्जी. लेट्स सी. देखिए, इन अनदर इनोवेशन द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इज यूज्ड टू इलेक्ट्रोलाइज वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस. ठीक है, तो यहाँ पे मेन पर्पस क्या है कि हम किसी वाटर का, राइट, यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम वाटर का क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में सेपरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस. जब हम H2O को H2 और O2 में सेपरेट आउट कर रहे होते हैं, ठीक है. सो दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस एंड व्हेन वी डू दैट कम्स द यू कैन से ग्रेट यूज. तो अब ये जो हाइड्रोजन है ये हम शोर पर लेकर जा सकते हैं, एंड वी कैन यूज दैट हाइड्रोजन ओनली, राइट? तो ये इसमें इनोवेशन हम यूज कर सकते हैं बाय एंड मेक इट मोर मच एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी ओवर हियर. अब देखिए किस तरीके से हम हार्नेस कर सकते हैं. तो पहली बात तो हमें ये पता चल चुका है कि बहुत सारी जो विंड है वो ओशन की सरफेस पे ऐसे उसके ऊपर ही ऊपर इस तरीके से मूव करते रहती है, एंड व्हेन इट डज लिटिल बिट ऑफ वाटर जो है उसके साथ साथ मूव करते रहता है, एंड दैट इज द मेन थिंग कि अपर लेयर ऑफ द वाटर है वो स्टिल नहीं रहता है. ठीक है, वो कैसा रहता है? मूव करते रहता है. देयर वुड बी वेव्स और एवरी सिंगल टाइम एंड यू कैन से एवरी सिंगल मोमेंट ओवर देयर. The kinetic energy of the huge amount of water that moves along the waves is called ocean wave energy. तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसी को ही हम ओशन वेव एनर्जी बोल रहे हैं. अब देखिए पानी जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, दैट मीन्स इट इज मूविंग एंड वी हैव एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस मोशन दैट इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी. तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली दिस एनर्जी कम्स एज द ओशन वेव एनर्जी. ठीक है, अब इसको हार्नेस कैसे करें? देखिए, द मोस्ट कॉमन डिवाइसेस दैट कैन बी यूज्ड फॉर हार्नेसिंग ओशन वेव एनर्जी आर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइसेस जिनकी हेल्प से वी कैन हार्नेस दैट एनर्जी, वी कैन गेट अप दैट एनर्जी. नंबर 1 इज द सरफेस फॉलोवर्स, ठीक है, जो कि फ्लोट करते हैं, या फिर पिचिंग डिवाइसेस. ठीक है, तो ऐसे डिवाइसेस जो कि क्या करते हैं, पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे फॉलो द सरफेस ओवर देयर. ठीक है, वो ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, सो दे फ्लोट ओवर देयर. Second is oscillating water columns. ठीक है, let's learn about these कि भाई है क्या ये और कैसे हम इन ocean wave energy को harness कर सकते हैं using these two devices over here. So पहला आता है surface followers using floats और pitching devices. So you can see up to here, this is the floating object here. ये एक floating object है, float करते रहती है, and क्योंकि ये float कर रही है तो ये wave के साथ भी क्या करेगी, move करेगी. ठीक है, क्योंकि wave आती जाती रहेगी ना, तो उसके साथ साथ ये float होते रहेगी तो move करते रहेगी. ठीक है, and you can see up to the shaft over here at the seabed there would be shaft. ठीक है, अप एंड डाउन ये मोशन करेगी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, क्योंकि ये वेव के साथ मूव कर रही है एंड इट इज फ्लोटिंग, तो जैसे ही वेव इधर उधर जाएंगी ये भी कैसे होते रहेगी, फ्लोट होते रहेगी. ठीक है, सो लेट्स सी
The surface followers consist of a series of floating objects that are pivoted about a rigid shaft along a coastline. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स हम लोग सी में लेके चल जाते हैं एंड वो क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं एंड दे आर कनेक्टेड विद अ शाफ्ट. ठीक है, चाहे हम उसे कॉस्ट लाइन पर लगा दें चाहे हम उसे सी बैड पर लगा दें, तो दे आर कनेक्टेड, दैट दोज फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स आर connected with the shaft. Alright, next the mechanical energy produced in the shaft is then converted into electricity. अब क्योंकि इस फ्लोटिंग की वजह से जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है वो स्टिल तो नहीं रहेगी, वो तो मूव करती रहेगी वेव की तरह. वेव जैसे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, कैसे भी जा रही है, वो उसके साथ साथ मूव करते रहेगी, उसके साथ साथ चलते रहेगी. एंड यही मैकेनिकल एनर्जी विल गेट इनटू द शाफ्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट शाफ्ट क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करेगा. सो बेसिकली वी आर गेटिंग दैट एनर्जी जो कि सी वेव में है ऑलरेडी एंड वी आर हार्नेसिंग दैट एनर्जी बाय changing it into mechanical energy and then that mechanical energy is going to be converted into the electricity, right? Electricity. Now next the oscillating water column. ये हमारा सेकेंड डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम लोग ओशन वेव एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं. सो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखिए एक कंक्रीट का चैम्बर, सीमेंट का चैम्बर हमने यहाँ बनाया है. ठीक है, यहाँ पर देखो वेव जो होती है वो राइज और फॉल कर सकती है, यहाँ पे करते रहती है. ठीक है, लेकिन इस जगह पे क्या है, एयर है. ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ राइज करेगी फॉल करेगी उसकी वजह से यहाँ पर राइज एंड फॉल होगा. इन दैट केस यहाँ जब ये राइज होगा तो यहाँ पे जो एयर है वो पुश आउट हो जाएगी बाहर की तरफ, राइट, और जब वो फॉल होगा तो सक आउट हो जाएगी एयर, राइट. इन दैट केस ये जो टर्बाइन है ये मूव करेगी व्हेन एवर एयर गोज इन एंड कम्स आउट. सो बेसिकली इन दैट केस क्या होगा, टर्बाइन रोटेट करेगी एंड व्हेन टर्बाइन रोटेट्स वी आर गोइंग टू गेट द इलेक्ट्रिसिटी, राइट. सो बेसिक वन थिंग जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वी जस्ट नीड टू मेक टर्बाइन मूव, right? Any energy, that energy is just going to be used while converting that into the you can say using that energy in moving the turbines over there. So basically यहाँ पे जो oscillating हम लोग बोल रहे हैं water columns, तो ये water columns क्या करेंगे, ऊपर नीचे जाएंगे because of those waves, राइट. अब ये जब ऊपर नीचे जाएंगे, अगर ये ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे प्रेजेंट एयर को वो बाहर धकेल देते हैं, राइट. एंड जब ऐसा होता है, जब वो बाहर धकेल देते हैं उसके बाद क्या होता है, यहाँ से जो भी एयर जाएगी वो क्या करेगी, टर्बाइन को रोटेट करेगी. और जब कभी भी क्या होता है, नीचे जाती है लहरें, पानी नीचे जाता है तो जो एयर है उसको सक आउट कर लेते हैं, अंदर लेकर आ जाते हैं, राइट. जब अंदर लेकर आ जाएंगे उसकी हेल्प से भी यहाँ पर क्या होगा, एयर कॉलम जनरेट होगा एंड अगेन जैसे ही वो ऊपर गई वापस से सक आउट करती है एंड द टर्बाइन रोटेट्स, राइट. तो इन दैट केस व्हाइल गोइंग इन गोइंग आउट द टर्बाइन इज गोइंग टू बी रोटेटेड. ठीक है, अब देखिए oscillating water columns use the force of ocean waves entering a fixed device to do mechanical work or generate electricity. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए जो ऑसिलेटिंग वाटर कॉलम्स होते हैं वो ओशन वेव्स के फोर्स को यूज करते हैं. ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, एक फिक्स्ड डिवाइस, यानी कि कंक्रीट एंड सीमेंट का हमने जो दीवार बनाई है वहाँ पे फिक्स्ड है ना, उसके अंदर जाते हैं, उसके अंदर बाहर आते हैं. सो इन दैट केस वहाँ पे मैकेनिकल वर्क होता है इन पुशिंग आउट द एयर एंड sucking in, right? And in that case turbines rotate होती है and we are going to get the energy over there. For example, in anchored navigation buoys the waves compresses the air. तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से when we are going to do that we are just pushing out the air and sucking it, so we are making that column vibrate over there, and that is why its name is the oscillating water columns, and that's how we are going to get the energy, the electricity over there. Alright, the compressed air is then used to rotate turbine and then generate electricity, normal thing. राइट, तो देखिए इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं. अब आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिए एंड देन वी विल कम अप टू द नेक्स्ट एनर्जी.
Alright, now let's move up to the geothermal energy. Now इसमें भी 2 words हैं, geothermal. Geo is for earth and thermal is for heat, right? तो मतलब earth की heat को हम लोग use करने वाले हैं and we are using that heat and we are going to change it into the electricity either or we are going to do some work by using that heat only. ठीक है, कैसे? Let's see. ये देखिए, जो प्लांट यहाँ पर है ये जियोथर्मल प्लांट है. ये जियोथर्मल जो है, जियोथर्मल का मतलब अंदर से कोई ऐसी रॉक्स होती हैं, मॉल्टन रॉक्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा हॉट होती हैं. तो वो क्या करती हैं, अंडर वाटर जो होता है उसको, ग्राउंड वाटर जैसे हम कहते हैं, तो वो जो ग्राउंड वाटर होता है उस ग्राउंड वाटर को वो क्या कर देते हैं, हीट देकर उसे वेपर्स में चेंज कर देते हैं. एंड अब वेपर्स के पास काफ़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ गई है, सो दे मूव अपवर्ड्स. एंड जब उन्हें कोई पाथ नहीं मिलता बाहर जाने का तो वो फट जाते हैं और वहाँ से फिर अचानक से तेज़ी से बहुत सारी जो वेपर्स हैं वो निकलती हैं. ठीक है, और इवन वहाँ से हॉट वाटर का यू कैन से बहुत सारा पानी भी वहाँ से आता है, वो फव्वारे की तरह बन जाता है बेसिकली. Right, so in such areas you can set up the plant over there and you can access the heat over there. ठीक है, अब देखिए किस तरीके से. Geothermal energy is the heat energy of hot rocks present inside the earth. तो जियोथर्मल एनर्जी का मतलब कि जो धरती के अंदर जो हॉट रॉक्स हैं, गरम गरम रॉक्स हैं, उनकी ही एनर्जी, हीट एनर्जी को बाहर लाना. ठीक है, अब देखिए, दिस हीट कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, ये जो हीट है इसको हम एज अ सोर्स यूज कर सकते हैं एंड वी कैन चेंज इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी. राइट, लेट्स सी. Geothermal energy is one of the few sources of energy that do not come directly or indirectly from solar energy. ठीक है, ये एक ऐसी एनर्जी है जो सोलर से नहीं आती, बिकॉज वी ऑल नो दैट इन द क्रस्ट इनसाइड द अर्थ दैट इज वेरी 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 हॉट टेम्परेचर इनसाइड देयर. राइट, क्योंकि कोर है वहाँ पे, मॉल्टन लावा है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा हीट है वहाँ पे एंड दैट हीट इज कमिंग आउट, है ना. तो इसमें सोलर एनर्जी का तो कोई रोल ही नहीं है. राइट, नो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यू कैन से एनर्जी जो हमें सोलर एनर्जी मिल रही है वो बिल्कुल भी इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड नहीं है. ठीक है, the places where very hot rocks occur at same depth below the surface of earth are called hot spots and are sources of geothermal energies. So basically ऐसा हर जगह नहीं होता है. ठीक है, बहुत ही कम प्लेसेस होती हैं जहाँ ऐसा होता है, और जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हॉट रॉक्स प्रेजेंट रहती हैं उस जगह को हम बोलते हैं हॉट स्पॉट्स. ठीक है, एंड देयर आर वेरी फ्यू प्लेसेस जहाँ पर ऐसा होता है. सो ये जो लिमिटेशन है जियोथर्मल एनर्जी का कि ये आपको आपके हिसाब से नहीं मिलेंगी, इट इज़ लाइक नेचुरल थिंग. ठीक है, तो एक तो बहुत ही कम ऐसे प्लेसेस मिलेंगे, ऊपर से वो आपको कहीं भी मिल सकते हैं. राइट, सो इट्स नॉट ऑन यू, आपको चेकआउट करना पड़ेगा. अगर यहाँ है तो यू यूज़ दैट एनर्जी एंड दैट वुड बी इट. ठीक है, चलिए किस तरीके से हार्नेस करते हैं हम लोग जियोथर्मल एनर्जी को. लेट्स सी दैट द एक्सट्रीमली हॉट रॉक्स प्रेजेंट बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ हीट द अंडरग्राउंड वाटर एंड टर्न इट इनटू स्टीम. अब अंदर जो बहुत ज़्यादा हॉट रॉक्स हैं वो क्या करती हैं, वो ग्राउंड वाटर के कांटेक्ट में आती हैं, ग्राउंड वाटर को क्या कर देती हैं, हीट अप कर देती हैं एंड उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देती हैं. ठीक है, एज मोर एंड मोर स्टीम इज फॉर्म्ड बिटवीन द रॉक्स इट गेट्स कंप्रेस टू हाई प्रेशर. अब जितना ज़्यादा कन्वर्जन होगा, वाटर वेपर्स वहाँ बनेंगी रॉक्स के बीच में, बिकॉज देयर इज मोर प्रेशर. राइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर वहाँ पे वो कंप्रेस हो जाते हैं. ठीक है, a hole is drilled into the earth and the hot rocks come up through the pipe at a high pressure. अब अगर हम ड्रिल कर दे और वहाँ से कुछ कनेक्ट कर दे, सो एट जो प्रेशर वहाँ पे कलेक्टेड है वो अचानक से बाहर आएगा. राइट, एंड दैट वुड बी हैविंग so much kinetic energy in that. Right, this high pressure steam runs the turbines of a generator to produce electricity. अब ये जो बहुत ज़्यादा हैवी और यू कैन से हाई एनर्जी का जो यहाँ पर टर्बाइन यू कैन से द रॉक्स हैं. ठीक है, वो रॉक जो हाई प्रेशर पे नीचे हैं एंड हैविंग हाई यू कैन से काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो, सो दे कम्स एट अ हाई प्रेशर. जब वो बाहर आएंगे, अब क्योंकि वो पूरे फोर्स के साथ आएंगे एंड दे हैव दैट मच ऑफ एनर्जी, दे मेक दी turbine to rotate and then we are going to get that electricity. Right, एंड कुछ इस तरीके से हॉट स्पॉट्स में जब कभी भी प्रेशर बिल्डअप हो जाता है एंड नो बडी इज लुकिंग फॉर दैट, लेट्स से कि वहाँ पर हम लोग को पता नहीं चल पाया एंड कि हम लोगों ने वहाँ कोई काम नहीं किया. ठीक है, वी डिडंट मेक दैट ड्रिल. अगर ऐसा होता तो क्या होता है, जब उनको जगह नहीं मिलती है तो वो फट जाते हैं एंड दे कम इट लाइक दिस. अब ये हॉट वाटर
का फाउंटेन आप बोल सकते हैं, राइट. तो दिस इज हॉट वाटर एंड दिस आर कमिंग इनसाइड द अर्थ, फ्रॉम इनसाइड दैट, राइट. सेकेंड आप देखिए, लार्ज रॉक्स आर प्रेजेंट इन द अंडरग्राउंड रॉक्स विच अलाउ स्टीम इन हॉट वाटर टू गो अप. ठीक है, कुछ बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं जो क्या करती हैं, नीचे के जो गर्म पानी और रॉक्स होती हैं उन्हें ऊपर आने में अलाउ कर देती हैं. ठीक है, उनको किसी तरह रास्ता मिल जाता है ऊपर आने के लिए. द स्टीम इन हॉट वाटर गशिंग आउट ऑफ द ग्राउंड इज अ काइंड ऑफ नेचुरल गीजर. अब उसके अंदर से क्या होता है, धरती के अंदर से गर्म वाटर एंड स्टीम्स एंड रॉक्स वहां मिल रही हैं, तो दैट वर्क्स एज अ नेचुरल गीजर जस्ट लाइक दिस हॉट वाटर फाउंटेन. This steam is then used to turn turbine, generate electricity and the hot water is used to cook food. ठीक है, तो अगर स्मॉल लेवल पे है तो आप खाना बना सकते हो. ठीक है, यू यूज दैट वाटर एज बाथिंग, राइट, फॉर बाथिंग. सो बेसिकली आपको फिर अपना गीजर यूज नहीं करना पड़ेगा. ऑल्सो यू कैन यूज इट, अगर ये हाई अमाउंट में अवेलेबल है तो यू कैन यूज इट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. मेक श्योर यू मेक द टर्बाइन रोटेट एंड दैट्स इट. ऑलराइट, लेट्स मूव अप टू द बायो एनर्जी. तो देखिए बायो एनर्जी क्या होता है. बायो मीन्स नेचुरल, राइट, बिकॉज अप टू दैट बायोलॉजी, वी स्टडी बायोलॉजी. सो बेसिकली उसमें हम नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, राइट. नेचर, एग्जिस्टिंग लिविंग बींग जो हम लोग देख पा रहे हैं. तो बेसिकली ये जो एनर्जी है, जब ऐसे बायो एनर्जी का मतलब है कि द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द नेचुरल वेस्ट, दैट मीन्स द फॉलन लीव्स, ठीक है, एनिमल वेस्ट, राइट. इन सब चीज़ों से जो हमें एनर्जी मिल रही है दैट इज द बायो एनर्जी. ठीक है, द एनर्जी obtained फ्रॉम द बायोमास ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड बायो एनर्जी. ठीक है, तो हमें मेन इंपॉर्टेंट इन चीज को देना है, दैट इज अवेलेबल एवरी सिंगल टाइम एंड दैट इज व्हाई इट इज रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, राइट. तो देखिए बायोमास सोर्सेज में जैसे क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड रेसिड्यूज इसमें इंक्लूड हो जाता है, सीवेज इसमें इंक्लूड हो जाता है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इंक्लूड हो जाता है, एनिमल रिड्यूसेस हो जाता है, इंडस्ट्रियल रेसिड्यूज हो जाता है, फॉरेस्ट्री क्रॉप्स एंड रेसिड्यूज, they all come into the category of the biomass sources and we get that energy, bioenergy from these. ठीक है, देखिए नेक्स्ट वी मूव अप टू दैट, बायोमास इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. क्यों? क्योंकि तो हमेशा अवेलेबल रहेंगे हमें, है ना. एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, ये तो हमेशा हमें अवेलेबल रहेंगे. सो इट वुड बी लाइक नो बिग डील, राइट. और ये बार बार प्रोड्यूस भी हो सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बायोमास. व्हाट इज दैट? The waste material of living things and dead parts of living things is called biomass. Fallen leaves, animal waste and all such things, these comes into the category of biomass. And from that biomass we are going to get the bioenergy. ठीक है, next see, biomass के अंदर जैसे cattle dung, ठीक है, wood, sewage, agricultural wastes, crop residues like bagasse is like sugar cane का जो remain रहता है, right? यू नो द शुगर केन, गन्ना जिसे हम कहते हैं, एंड उससे शुगर बनती है. ऑलराइट, चलिए देखिए, बायोमास इज कार्बन कंपाउंड्स एंड इट इज द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस. ठीक है, डोमेस्टिक पर्पसेस के केस में हम लोग बायोमास को बहुत टाइम से यूज करते आते हैं. मीन्स फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन वी यूज एनी एनर्जी टू गेट हीट इज द बायोमास. कैसे किया था? पत्थर को घिस घिस के जो प्लांट्स हैं, जो लीव्स हैं, सूखी पत्तियाँ ठीक है, सूखी पत्तियाँ और जो सूखी लकड़ियाँ जो होती थी उन्हीं को तो जलाया जाता था. तो वो चीज़ तो हम बहुत स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, राइट, बहुत स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं. तो ये सबसे ओल्डेस्ट है, बायोमास को यूज़ करना इज द ओल्डेस्ट, यू कैन से द ओल्डेस्ट थिंग, जो कि हम बहुत टाइम से एज अ सोर्स यूज़ कर रहे हैं फॉर आवर एनर्जी. ठीक है, सो देयर आर टू वेज जहाँ पर हम बायोमास को एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं. पहला इज क्या करें, हम ड्राई बायोमास को जला दें. ठीक है, तो हमें डायरेक्टली हीट मिल जाएगी, जैसे कि कैटल डंग, या फिर कैटल डंग जो होता है जिसे हम ऊपला कहते हैं. गोबर के कुछ गोबर के कंडे भी होते हैं, उन्हें हम ऊपला भी कहते हैं दूसरे लैंग्वेजेस में. ऑलराइट, एंड तो ये जो होता है इसे अगर हम बर्न करेंगे वी आर गोइंग टू गेट दैट टोटल, यू कैन से हीट एनर्जी फ्रॉम देयर डायरेक्टली. और अगर हम वुड को बर्न कर लेते हैं तो हमें डायरेक्टली हीट मिल जाती है. तो एक तो तरीका ये है कि आप बायोमास को डायरेक्टली हीट कर दो तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा एनर्जी. दूसरा मेथड है कि आप इस बायोमास को ज़्यादा यूजफुल फ्यूल्स में कन्वर्ट करो. ठीक है, एंड देन आप इस फ्यूल को फिर हीटिंग पर्पसेस में लो. अब ये जो फ्यूल है ये कैसे ऑब्टेन किया जाए, लेट्स गेट अप टू दैट. चलिए, बायोगैस यही वो इंपॉर्टेंट फ्यूल है जिसकी हेल्प से वी कैन कुक आवर फूड ऑल्सो मच मोर यूजफुल. ठीक है,
The decomposition which takes place in the absence of oxygen is called anaerobic degradation. तो वो जो बायोमास था उसको हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में डीकम्पोज करेंगे. एंड व्हेन वी डू दैट, जब हम ऐसा करते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में उसका डीकम्पोजिशन करवाते हैं, तो क्या होता है, वहां पर एनएरोबिक डिग्रेडेशन होता है. ठीक है, एनएरोबिक डिग्रेडेशन की हेल्प से ये जो बायोफ्यूल है, बायोगैस है, ये हमें जो है मिलता है. ठीक है, वहां से एनएरोबिक डिग्रेडेशन इज कैरीड आउट बाय एनएरोबिक बैक्टीरिया. ये काम कौन करता है, बैक्टीरियाज करते हैं, राइट, जो कि बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के रहते हैं. ठीक है, सो दे डू नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन टू लिव लाइक अस. ठीक है, फिर देखो, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड. इन सभी गैसेस का मिक्सचर इज द बायोगैस. ऑल्सो ये जो बायोगैस फॉर्म हो रही है, ये कौन कर रहा है, ये कर रहे हैं वो बैक्टीरिया जो कि बिना ऑक्सीजन के पूरे बायोमास को डीकम्पोज कर देते हैं. ठीक है, नाउ सी, मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज मीथेन. सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस कौन सी होती है, मीथेन होती है. ठीक है, वो एलिमेंट उसमें सबसे ज्यादा होता है इन बायोगैस. Biogas is produced by the anaerobic degradation of animal wastes like animal dung in the presence of water. तो अगर हम ऐसा करते हैं, ठीक है, अगर वी डज दैट, जिसे हम स्लरी भी बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, तो हमें बायोगैस जरूर मिल सकती है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव अप टू द बायोगैस प्लांट. कुछ इस तरीके का दिखता है बायोगैस प्लांट. देखो, ये है वो स्लरी. ठीक है, यहाँ पे सूखी पत्तियां, लकड़ियां, है ना, कैटल डंग, एनिमल वेस्ट एंड व्हाटएवर जो भी है वो सब बायोमास हमने यहाँ डाल दिया. ठीक है, ये इसके अंदर थोड़ा ऐड कर दिया, उसको वाटर में ऐड कर दिया. सो दिस विल बिकम अ वेरी हैवी समथिंग, कुछ मिक्सचर, हैवी मिक्सचर, एंड दैट इज नोन एज स्लरी. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्लरी बोलते हैं. ठीक है, तो ये स्लरी अब कैसे जाएगा, नीचे जाएगा. एंड नाउ यू कैन सी देयर इज नो इनलेट फॉर द ऑक्सीजन ओवर हियर. ठीक है, तो ये स्लरी जाएगा नीचे. जैसे ही नीचे जाएगा, दिस इज द मेन चैम्बर. यहाँ पे वो बैक्टीरियाज होते हैं. देयर इज नो इनलेट फॉर ऑक्सीजन, कोई ऑक्सीजन बाहर से नहीं आ रही है. इस डोम शेप यू कैन से पूरे सिस्टम के अंदर ये डाइजेस्टर होता है, जहाँ पे इस पूरे स्लरी को डीकम्पोज किया जाता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में. ठीक है, एंड देखो, जो भी गैस जनरेट होगी वो यहाँ से, ये आउटलेट है, यहाँ से गैस बाहर चली जाएगी. एंड मे बी इसमें अगर हम कोई स्टोर करने के लिए रखें तो वहाँ स्टोर हो जाएगी. एंड देन यू कैन सी, ये जो भी कंटेंट है, इस कंटेंट को फिर यहाँ रख दिया जाता है. ये आउटलेट टैंक है. नाउ दिस कंटेंट इज द बेस्ट फर्टिलाइजर. लुक अप टू दिस, नो वेस्टेज. जो भी वेस्टेज था पहले तो हमने उसको यूज किया, उससे हमने एक फ्यूल बनाया, एंड जो भी चीज रिमेनिंग चीज है उसको हमने फर्टिलाइजर के रूप में क्रॉप्स में यूज कर लिया. एंड दैट इज व्हाई दिस इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज एवरी सिंगल थिंग इज बीइंग यूज्ड एंड वेरी मच एनरिच इन न्यूट्रिएंट्स ओवर देयर. ठीक है, तो अब आप देखो, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे मिल जाएगा, राइट. तो देखो, बायोगैस इज प्रिपेयर्ड बाय एनएरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल वेस्ट्स लाइक काउ डंग इन बायोगैस प्लांट्स. अब ये दो तरीके के होते हैं, फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट और फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट. ये जो है ना, ये फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट, ये एक ही जगह रहता है. ठीक है, इसको हम लेकर नहीं जा सकते कहीं और. एंड ये डोम शेप्ड का है, यू गेटिंग इट, दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज द डोम शेप्ड, क्योंकि उसका शेप ही डोम जैसा होता है. ठीक है, द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग बायोगैस इन बोथ द प्लांट्स इज द सेम. दोनों ही बायोगैस प्लांट्स में रॉ मटेरियल तो सेम ही है, बिकॉज बायोमास तो सेम ही होगा. इट इज अ मिक्सचर ऑफ कैटल डंग एंड वाटर. ये किसका मिक्सचर है, कैटल डंग एंड वाटर का मिक्सचर है. ठीक है, उसको हम मिक्स करेंगे एंड देन हम उसको सेंड आउट करेंगे डाइजेस्टर में, एंड डाइजेस्टर में अपने आप अपना काम होता जाएगा, राइट. सो दैट इज द मेन थिंग. इसको आप फटाफट से नोट कर लीजिए, ऑलराइट.
ऑलराइट, तो देखो अभी हमने प्लांट के बारे में सीख लिया है, किस तरीके का प्लांट है, कैसे हम लोग इसे बना सकते हैं, किस क्या क्या इसका प्रोसेस होता है. नाउ लेट्स लुक अप टू द स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर हम देखते हैं. तो इसके कुछ सेक्शंस हैं. पहला होता है डाइजेस्टर. सो दिस इज द मेन डाइजेस्टर ओवर हियर. ये एक वेल लाइक स्ट्रक्चर है, कुएं जैसा स्ट्रक्चर है, मेड फ्रॉम ब्रिक्स. अच्छा खासा उसको ईंटों से इसको हम फॉर्म करते हैं. Its roof is dome shaped which act as a fixed storage tank gas holder for biogas. तो डोम शेप का बनाने का उसका मेन हमारा रीजन ही यही है कि वो इजीली गैस को कंट्रोल करके होल्ड करके रख सकता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट कम्स दी, लेट मी, अभी एक लाइन हमारा रह गया. अ टैप्ड आउटलेट फॉर बायोगैस इज प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ द डोम. यहाँ पर गैस कंट्रोल वॉल्व है. ठीक है, तो इसके हिसाब से वी कैन कलेक्ट दैट, राइट. जब हमें चाहिए वी कैन कलेक्ट दैट, जब तक वो उसके अंदर होल्ड अप रहेगी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट कम्स द मिक्सिंग टैंक. ठीक है, ये है वो मिक्सिंग टैंक जहां पर इट इज मेड अबव द ग्राउंड लेवल ऑन वन साइड ऑफ द डाइजेस्टर. सो डाइजेस्टर की एक तरफ और ऊपर ग्राउंड पे जहां पे हम लोग एक्सेस कर सके, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू दैट, राइट. रॉ मटेरियल तो हम ही प्रोवाइड करेंगे. तो यहाँ पर जो है मिक्सिंग टैंक है जिसके अंदर स्लरी एंड वाटर को मिक्स करते हैं. ठीक है, एंड दैट इज द मेन थिंग यहाँ पर कि हम लोग उसको मिक्स कर रहे हैं. डाइजेस्टर की तरफ होता है. नाउ लेट्स द इनलेट टैंक इज द थर्ड वन. इट इज बिलो द ग्राउंड लेवल अंडर द मिक्सिंग टैंक. मिक्सिंग टैंक के ठीक नीचे दिस इज द इनलेट, यू कैन से दिस वन, दिस इज द इनलेट टैंक. अब अंदर जाती है जो इनलेट करने देती है, मतलब इट कैन गो इनसाइड दैट, तो दैट कम्स इन दी इनलेट टैंक. तो यहाँ से मिक्सचर डाइजेस्टर में जाता है वाया इनलेट टैंक. ठीक है. अब देखो ओवरफ्लो टैंक. इट इज मेड ऑन अदर साइड ऑफ द डाइजेस्टर एट अ लेवल लोअर देन मिक्सिंग टैंक. इस लोअर, देखो मिक्सिंग टैंक के बिल्कुल लोअर पे इसे बनाया जाता है. दिस इज दी, यू कैन से द ओवरफ्लो टैंक. ठीक है, यहाँ पे स्पेंड स्लरी होती है, जो बची हुई स्लरी होती है आफ्टर मेकिंग द बायोगैस. ठीक है. आउटलेट टैंक, इट इज बिलो द ग्राउंड लेवल अंडर द ओवरफ्लो टैंक. तो देखो ओवरफ्लो टैंक के नीचे दिस इज द आउटलेट टैंक. ठीक है, ये होता है आउटलेट टैंक. और यहाँ से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि भाई किस तरीके से हम बाहर लेकर जाएंगे रिमेनिंग स्लरी को. मिक्सिंग टैंक इज कनेक्टेड विद इनलेट टैंक एंड द ओवरफ्लो टैंक इज कनेक्टेड विद आउटलेट. अब देखो मिक्सिंग जो टैंक है, ये वाला मिक्सिंग टैंक है, उसको इनलेट से कनेक्ट किया हुआ है, राइट. और ओवरफ्लो वाला जो टैंक है उसे आउटलेट से कनेक्ट किया हुआ है, right. So these are connected like this, and this is the whole sections of the you can say the biogas plant over there, dome like biogas plant. ठीक है. अब देखिए वर्किंग क्या होता है. लेट्स लुक अप टू दैट. सारी चीजें हम उसकी देख लेते हैं, किस तरीके से हम पूरी की पूरी वर्किंग, उसका कैटल डंग का पूरा स्लरी मिक्सिंग एंड ऑल द थिंग्स. लेट्स सी अप टू दैट. तो देखो cattle dung and also human waste and domestic sewage and water are mixed in equal proportion in mixing tank to form a slurry. We are going to mix them in the equal amount of water, equal amount of the waste, right. उनको mix करके we make slurry. ठीक है, वो यहाँ पर हम बनाते हैं. ठीक है, चलिए. The cattle dung undergoes fermentation by anaerobic bacteria to form biogas which gets collected in the dome. अब ये जो स्लरी है ये आया इनलेट टैंक के थ्रू, यहाँ पर डाइजेस्टर में आ गया है. ये डाइजेस्टर यहाँ पर बिकॉज ऑफ इन एनाएरोबिक यू कैन से द बैक्टीरियाज, तो वो क्या करेंगे, इसे डिकम्पोज कर देंगे एंड यहाँ पर गैस कलेक्टेड हो जाएगी इन अ डोम शेप्ड, यू कैन से द डाइजेस्टर, राइट. नाउ लेट्स सी. As the amount of gas collected in dome increases, it exerts pressure over the slurry and forces the spent slurry in the digester to go out into the outlet tank and from there in the overflow tank. अब जैसे जैसे यहाँ पे गैस बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, गैस बढ़ती जाएगी तो it will create a pressure over there, right? ड्यू टू विच धीरे 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 वो इसको फोर्स करेगी और यहाँ से होता हुआ जो भी स्पेंट मटीरियल है वो धीरे धीरे आउटलेट टैंक में चला जाएगा और आउटलेट टैंक से वो ओवरफ्लो टैंक में चला जाएगा. ठीक है. द स्पेंट स्लरी इज रिच इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स एंड फॉर्म गुड मैन्योर. उसके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस होगा स्पेंट स्लरी में, मीन्स आफ्टर मेकिंग द बायोगैस प्लांट, एंड वहां से आपको बहुत ही बढ़िया मैन्योर मिलेगा, राइट. दैट वुड बी गुड. The biogas collected in the dome is taken out through the tapped outlet at the top.
थ्रू अ पाइप प्रोवाइडेड विद अ गैस कंट्रोल वाल्व। अब यहाँ से हम बायोगैस को ले सकते हैं जब भी हम चाहें यूजिंग दिस गैस वॉल्व, ठीक है। तो इसको आप ऑन करके यू कैन टेक आउट द गैस एंड यू कैन स्विच इट ऑफ व्हेन एवर यू आर नॉट इन यूजिंग, ठीक है। इट इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिजायर। अब आपको जैसा यूज करना है यू कैन यूज अप टू दैट, ठीक है। जैसा आपको यूज करना है यू कैन यूज इट। वंस द गैस प्लांट स्टार्ट्स फंक्शनिंग मोर कैटल डंग स्लरी इज एडेड टू द डाइजेस्टर। जैसे जैसे धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करता है तो आप थोड़ी थोड़ी देर में और स्लरी ऐड करते जाओ ताकि पूरा प्रोसेस चलता रहे चलता रहे चलता रहे, ठीक है। And a continuous supply of biogas can be obtained in this manner, or continuously you're going to get the biogas over there. You need to make sure that you give the, you can say input, right? That would be work as an input, raw material input, that is the slurry. And if you want to make you can say continuous you can say the energy, continuous that fuel, that biogas, right? So you need to make sure to add more slurry time to time. All right, so this is the working of the biogas plant, and these are very much, you can say, very much helpful because these are doing very much great work, right? They are making manure, they are making fuel, and they are also cleaning our environment by removing all the waste from our environment, right? We are going to do that, we are make that slurry over there, right? So basically it is good. Now let's talk about the uses of biogas. देखो डोमेस्टिक फ्यूल में भी यूज हो सकती है, ठीक है। आप उसको कुकिंग में ले सकते हो क्योंकि ये स्मोकलेस चूल्हे में यूज हो जाती है, ठीक है। हीटिंग पर्पसेस के लिए आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। इट इज समटाइम्स यूज टू रन इंजन्स एंड वाटर पंपिंग सेट्स। सो इंजन्स एंड वाटर पंपिंग सेट्स में आप इसे यूज कर सकते हो। स्ट्रीट लाइटिंग में भी आप इसे यूज कर सकते हो इन रूरल एरियाज, ठीक है। दैट वुड बी गुड। एडवांटेजेस of using domestic sewage in production of biogas. If you does that, ठीक है, instead of the leaves and all, if you does that, तो इसके क्या advantages हैं? Let's see. Smokeless fuel एक तो provide हो रहा है, तो that would be good, ठीक है। Smoke produce नहीं हो रहा उससे। It provides spent slurry which is good manure for agriculture. तो आपको एक agriculture के लिए भी अच्छा manure जो कि नाइट्रोजन फॉस्फेट से भरपूर है वो आपको मिल रहा है, right? Next comes it helps to control water pollution by decomposing unwanted water pollutants. तो वो unwanted water pollutants को भी decompose कर देते तो water pollution खत्म. So that is so good, right? Now let's talk about the merits of biogas as a fuel. तो देखो काफी सारे merits यहाँ पे हैं biogas fuel के. You can see those in the this type of figure also, right? तो ये काफी ज़्यादा हम लोग के लिए helpful है. Now let's look up to that कि भाई क्या क्या merits हैं. देखिए it is a clean fuel first of all, definitely it is a clean fuel और ये बिल्कुल भी smoke pollution बिल्कुल भी produce नहीं करता, ठीक है. फिर देख सकते हैं it has high calorific value, that means high calorific value means कम amount में ये काफ़ी ज़्यादा amount of energy provide करता है, ठीक है. So it is high calorific value, cheaper, काफ़ी easily available मिल जाता है. You are just going to use that slurry and that is freely available everywhere around you, right? So it is cheaper. Its use is convenient, easily आपने अगर एक बार बना दिया then it is convenient to use over there, ठीक है. Next comes कि ये storage space नहीं चाहिए, घर के अंदर आपको store नहीं करके रखना पड़ेगा, right? It is directly supplied to the house through pipes from the plant. एक जगह अगर आपने बना लिया तो पाइप के थ्रू आपके घर तक पहुंच सकती है, right? तो that would be good. That would be like really, really, really good. So we have so much of merits over here, right? And this is how this type of source is very, very, very good as an energy, right? तो देखो मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा वो ये कि वी हैव सच सोर्सेज विच आर वेरी वेरी बेनिफिशियल, राइट? एंड फॉर द इन्वायरमेंट, फॉर अस, फॉर क्लीनिंग आवर इन्वायरमेंट, एंड इवन and we can use all these sources and we can make sure कि भाई जो ऐसे sources हैं जैसे कि कोल जलाने का it can replace those, right? हम जो कोल को as a source लेते हैं तो वो उनको भी replace कर सकता है. They have that much of capacity over there, right? So what you need to do is you need to make sure that you study more about these sources and you need to make sure that if you are not using these sources then use one of them so that you can get the energy at a very 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 efficient manner and a clean manner, all right? And that will be good. So basically हम लोगों ने सारे sources of energy पढ़ लिए हैं. हमारा एक और बचा है, that is the nuclear fusion and fission.
So in the next lecture and we are going to talk about these processes, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे एंड ये जो अमाउंट है एनर्जी वो काफ़ी ज़्यादा होती है एंड दैट इज़ द मेन थिंग वी नीड टू स्टडी अबाउट दोज टू. So that is what we are going to do in the next lecture. So stay tuned. Thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming video. Thank you so much.